welcome in this English class. As you know, we are doing our topic related to communication. Till now, you discuss about what is communication, definition of communication, meaning, and the major components. What are the major components and what are their work in the communication? These all concepts we already done. After that, we start our next topic, that is types of communication, or you can say method of communications. The type of communications and the method of communications are considered as the vehicle or the instrument which is necessary to do a communication process, because as you know, in the communication process there is an interaction between a one person and the second person. For that interaction we have need a method or a source or a channel which is required for the communication process, or you can say that is the necessary concept. Without medium, without type of communications, without method, a communication process cannot be complete. And in this method we have studied that we have two type of methods of communication. First is verbal communication and second is non-verbal communication. In the verbal communication, as you know, the communication which is transmit the message with the help of any language. That language can be English, Hindi or mother tongue, French, whatever. But on the other hand, if you see the non-verbal verbal communication, in non-verbal communication, the communication in which the message is transformed with the help of some symbols or the signs. Sign language or the symbols just like the facial expressions, gestures and the physical movement of one person. That physical movement and the facial expressions also communicate, also interact the other person. After that we see that verbal communication is further major divided into the two parts. First is oral verbal communication and second is written verbal communication. Similarly, the non-verbal communication that also divided into the two parts. First one is the non-verbal audio communication and second is non-verbal visual communication. Audio, you can say audio or oral, that can be sound ki non-verbal oral communication. Now as you know, in the oral communication, oral verbal communication, we see verbal communication. Verbal communication means we use any language. There is a use of any language. Without the use of any language, the verbal communication cannot be possible. And in the oral communication, we see the oral communication, that type of the communication in which the spoken form is required. When the person is using pertaining their mouth or telling something to the second person, that type of communication is considered as the oral communication. After that we see in the oral communication there are the two major components. First one is the pronunciation and second one is the word's manner. Pronunciation means how the word is communicated, how the pronunciation, how the vocal cord is used by the sender. And in the second, word manner. Word manner means any word, any sentence in any situation, किस तरह की situation में हम sentence को use कर रहे हैं, that will be come in the word manner. After that we see there are the two level of oral communication. First is the highest level and second is the lowest level. In the highest level we see the highest level, the face-to-face interaction between the two persons, sender and the receiver, directly contact. When the sender and receiver are come in the directly contact or there is a face-to-face interaction, that oral communication come at the highest level. Or on the second hand we have the lowest level. Lowest level means any type of the telecommunications or with the use of any gadget or with the use of any appliances. You can say when a person is talking with their friend or a relative with the mobile phone, with the cell phone, telephone. In this situation, the sender and the receiver are not directly contact. They are considered as a non-directly contact. So means lowest level of oral verbal communication, there is a not directly connection between a sender and a receiver. ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि हमारे पास जो oral communication है उसके अंदर दो मेजर लेवल थे. First is the highest level and second is the lowest level.
हाईएस्ट लेवल में हमारे पास क्या चीज सामने आई थी कि जब एक सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में क्या हो रही है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, डायरेक्टली कांटेक्ट हो रहा है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ना क्लासरूम, एक क्लासरूम की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लासरूम में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स आर डायरेक्टली कांटेक्ट, उन दोनों का क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, इंटरेक्शन क्या हो रही है, डायरेक्ट हो रही है। तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट लेवल का कम्युनिकेशन माना जाता है ऑरल वर्बल के अंदर। सिमिलरली अगर हम सेकेंड साइड में देखते हैं कि हमारा लोएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, लोएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या था कि जहां टू पर्सन जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां किसी ना किसी गैजेट को यूज किया जा रहा है टेलीफोनिकली। जब एक पर्सन अपने किसी भी रिलेटिव से, किसी भी फ्रेंड से टेलीफोन से बात कर रहा है, या हम ये कहें कि मोबाइल के थ्रू बात कर रहा है, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो कैसा कम्युनिकेशन है, वो लोएस्ट लेवल का कम्युनिकेशन है इन द ऑरल कम्युनिकेशन। और आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ऑरल कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या यू कैन से लिमिटेशंस जो हैं वो क्या हैं हमारे ऑरल वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं ऑरल कम्युनिकेशंस के अंदर। फॉर्म मीन्स, फॉर्म का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशंस, व्हाट टाइप ऑफ द सिचुएशंस इन विच ऑरल कम्युनिकेशन इज डन, कि किस तरह की सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम ऑरल कम्युनिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है, फर्स्ट वन इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं और आप अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो जब बातचीत हो रही है, स्पोकन ऑरली आप बात कर रहे हैं, तो वहां कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ कम्युनिकेशन कैसा हो गया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, कि आप जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में आकर क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फेस टू फेस कन्वर्सेशन को अगर हम हाईएस्ट उसकी लेवल की बात करें तो लेवल के बिहाव पे इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, एट दिस कम ऑन द हाईएस्ट लेवल, की हाईएस्ट लेवल, क्योंकि यहाँ पर जो सेंडर है और रिसीवर है वो दोनों ही क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में है। सेकेंड वन इज मीटिंग एंड conferences. Meeting and the conferences in the management level, or you can say in any business firm or in any offices, you see there is a many type of the meeting is come on, in which the main authority is giving some guideline to the members of the business, कि जो मेंबर्स हैं या जो वर्कर हैं जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर उनके थ्रू क्या करी जाती है, मीटिंग करी जाती है। कुछ एजेंडाज होते हैं जो कि डिस्कस करी जाती हैं। मीटिंग के अंदर भी हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट का कोई भी हम ये कहें अथॉरिटी पर्सन, मैनेजर है, वो अपने ही वर्कर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइन जो है वो दी जा रही हैं। सिमिलरली इन द कॉन्फ्रेंसेस, कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी यही होता है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है। नंबर ऑफ पर्सन्स वहाँ बैठे होते हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स क्या कर रहे हैं, अपने व्यूज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। किस फॉर्म में, इन द ऑरल कम्युनिकेशन। स्पोकन फॉर्म में वहां पर अपने जो वर्ड्स हैं या अपनी जो इंफॉर्मेशंस हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लेक्चर्स। लेक्चर्स आप किसी भी क्लासरूम का कम्युनिकेशन कह सकते हैं। टीचर क्लासरूम जो कम्युनिकेशन है, टीचर वहां अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या देता है, उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर देता है, उस कंसेप्ट की मेजर माइनर हर तरह के एस्पेक्ट को बच्चे के सामने जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करता है, ऑरल फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। तो लेक्चर्स दैट आल्सो कम इन द ऑरल कम्युनिकेशन, ये भी फॉर्म है कि किस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं लेक्चर्स के अंदर। सिमिलरली आपने देखा होगा कि जो हायर पॉलिटिशियंस हैं वो रैली करते हैं, उस रैली के अंदर क्या होता है, वो पॉलिटिशियन जो है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर दे रहा होता है, अपने कंसेप्ट को या अपने आइडियाज को दूसरे के सामने डिलीवर कर रहा है। तो ये भी क्या है, दैट इज द ऑरल फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है टेलीफोनिक टॉक।
टेलीफोनिक टॉक, जिसका मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ, आप अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ भी टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, गैजेट को यूज करते हुए, सेलफोन के थ्रू बात कर रहे हैं, तो वो भी किस तरह का फॉर्म है, दैट विल बी ऑल्सो कम इन द ऑरल फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है रेडियो। रेडियो जो है, या हम ये कहें कि टेलीफोनिकली, यहां तक हमारे पास जो लेवल आ गया है वो किस तरह का लेवल आ गया है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल, क्योंकि यहाँ टेलीफोनिकली यहाँ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो रहा सेंडर और रिसीवर के बीच में। रेडियो के अंदर भी हम क्या देखते हैं, रेडियो क्या है, दैट इज द मेजर सोर्स ऑफ टू गेट द एनी इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि हम कहें कि जहां इंफॉर्मेशन जो है वो मास कम्युनिकेशन किया जाता है, ग्रुप ऑफ पर्संस को जहां क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन देनी है, तो वहां पर किसको यूज करते हैं, हम रेडियो को यूज करते हैं। रेडियो के साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट आता है इसमें टेलीविजन। रेडियो, टेलीविजन, these are the major source to spread the group informations। जो ग्रुप इंफॉर्मेशन, हम जिस भी इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, रेडियो को यूज किया जाता है और टेलीविजन को यूज किया जाता है। आप टेलीविजन के थ्रू, न्यूज के थ्रू अपडेट होते हैं, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, सोशल टॉपिक क्या चल रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज में क्या हो रहा है, उन सब चीजों की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है, टेलीविजन के थ्रू मिलती है, या हम कहें कि रेडियो के थ्रू वहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि लोग जो हैं वो इस गैजेट के बिहाफ पर इंफॉर्मेशन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो रेडियो है और टेलीविजन है, इसके बिहाफ पर दोनों के बीच में, जो सेंडर है और रिसीवर है, उन दोनों के बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता। डायरेक्टली कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस, कि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस होगी तो ही वहां पर डायरेक्टली कांटेक्ट होगा, नहीं। डायरेक्टली कांटेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जहां पर सेंडर को एक्टिव होना है, ऐसा कांटेक्ट या ऐसा लेवल जहां पर एक सिचुएशन में सेंडर भी आपका क्या हो, एक्टिव हो, और जो रिसीवर है दोनों ही जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्टिव फॉर्म में होते हैं। एक्टिव फॉर्म, दोनों ही जो हैं वो क्या होंगे, आपके एक्टिव फॉर्म में होंगे। तो उस तरह की कम्युनिकेशन को हम किस में लेके चलते हैं, हाईएस्ट लेवल के अंदर लेके चलते हैं। हम कहें रेडियो की बात करें या टेलीविजन की बात करें, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, सेंडर इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिसीवर इंफॉर्मेशन को गेन भी कर रहा है, लेकिन दोनों जो हैं वो यहाँ पर एक्टिव नहीं होते। सिर्फ जो सेंडर है वो एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन हमारा रिसीवर जो है वो यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या है, these are the various form of the oral communication, face to face interaction, meeting or the conferences, lectures, telephonically talk, radio or the televisions, these all are come in the form of the oral communication, means these are the way by which the oral communication can be done, कि ये एक तरीके हैं जिसके बिहाफ पर oral communication किया जाता है, या जो हम बातचीत कर रहे हैं वहां पर किस किस रूप में oral communication होता है। तो these are the form, these are the variety in which the oral communication is done। अब हम देखते हैं कि what are the advantages and the limitations of the oral communication, कि जो हमने oral communication पढ़ा है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्या मेजर एडवांटेजेस हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या इसके लिमिटेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब क्या हो गया, कि मतलब कहां पर जो ओरल कम्युनिकेशन है वो यूजफुल है, जहां उसका अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, और उसके साथ साथ इफेक्टिवनेस जो है वो हमारे पास सामने आती है। तो वो चीज किसमें कंसीडर करी जाती है, वो एडवांटेजेस के अंदर कंसीडर करी जाती है। तो सबसे पहली जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं ओरल कम्युनिकेशन की, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव बिकॉज द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटिंग। फर्स्ट एडवांटेजेस हमें क्या कहती है, ओरल कम्युनिकेशन is more effective। इसे more effective क्यों बोलते हैं,
because directly contact between sender and receiver, दोनों के बीच में क्या होता है, एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो सेंडर भी एक्टिव रोल प्ले करेगा और रिसीवर भी एक्टिव रोल प्ले करेगा। तो दोनों के एक्टिवनेस होने से कम्युनिकेशन अपने आप में क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन हम स्प्रेड करना चाहते हैं, जो कम्युनिकेशन करने का मेजर ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या हो पाएंगे, अच्छे तरीके से फुलफिल हो पाएंगे। इसलिए ऑरल कम्युनिकेशन को मेजर जो है वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि ऑरल कम्युनिकेशन इज फास्टर एज कंपेयर टू द रिटन कम्युनिकेशन। is faster as compared to रिटन कम्युनिकेशन। जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन के बिहाफ पर जब हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन टेक सम टाइम, यहाँ कुछ समय लगता है। लेकिन ऑरल कम्युनिकेशंस जो है वो उतना जल्दी, वहां पर सिर्फ आपको बोलना है, वहां कोई आपको लिखना नहीं है, कोई आपको सोचना नहीं, कोई ज्यादा टाइम उसके अंदर नहीं लगता। लेकिन तभी ऑरल कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर है, तो वो उसकी एडवांटेजेस के अंदर कंसिडर किया जाता है। सिमिलरली हम ये कहें कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या देखेंगे हम, ऑरल कम्युनिकेशन इज लेस एक्सपेंसिव देन द रिटन कम्युनिकेशन। Oral communication is less expensive than written communication। ऑरल कम्युनिकेशन में आपको किसी भी अदर सोर्स की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए। सेंडर के पास खुद के माइंड में इंफॉर्मेशन होती है और वो सिर्फ अपने वोकल कॉर्ड को यूज करके इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर देता है। तो इसलिए ऑरल कम्युनिकेशन को हम क्या कंसिडर करते हैं, लेस एक्सपेंसिव इसे कंसिडर किया जाता है। उसके साथ साथ ऑरल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन गेटिंग क्विक रिस्पॉन्स। helps in getting क्विक रिस्पॉन्स। यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो बहुत जल्दी आता है। जितना ज्यादा हम कहें डायरेक्टली कांटेक्ट होने की वजह से जो सेंडर और रिसीवर एक्टिव होंगे तो सेंडर इमीडिएटली अपनी इंफॉर्मेशन देगा और उसके बिहाफ पर सेंडर तभी के तभी साथ के साथ उसमें क्या दे देगा, फीडबैक दे देगा, उसका रिस्पॉन्स दे देगा। तो क्विक रिस्पॉन्स आ जाता है, तो वहीं पता चल जाता है कि जितना जल्दी अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो चीज क्या आ जाएगी, कम्युनिकेशन उतना ही ज्यादा क्या है, इफेक्टिव है। ऑरल कम्युनिकेशन मेजरली हम क्या देखते हैं, मेजर जो चीजें होती हैं ऑरल कम्युनिकेशन में, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशंस के अंदर हम ये कहें कि जो डेमोन्स्ट्रेशंस या गेस्चर्स यूज किए जाते हैं, दैट गेस्चर्स और द डेमोन्स्ट्रेशन कैन इंप्रूव द कम्युनिकेशंस। तो ऑरल कम्युनिकेशंस के अंदर फेस टू फेस एक्सप्रेशंस, यूज ऑफ फेस टू फेस एक्सप्रेशन improve कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को फेस टू फेस इंटरेक्शन करके और फेस हम कहें कि यूज ऑफ फेस टू फेस एक्सप्रेशंस, यहाँ फेस टू फेस एक्सप्रेशंस जब यूज किए जाएंगे तो वो इसको और भी ज्यादा क्या कर देगा, इफेक्टिव कर देगा, क्योंकि गेस्चर्स पॉइंट यूज हो जाएंगे, फिजिकल मूवमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो वो अपने आप में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनकर हमारे सामने आएगा। इसके साथ साथ हम कहें कि जो ऑरल कम्युनिकेशन है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी।
in oral communication lots of flexibility is present, कि ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कि इसको आप चेंज कर सकते हो एज पर द सिचुएशंस, जो हमारी सिचुएशन है फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से हम क्या देखते हैं इसके अंदर चेंजेस करे जा सकते हैं। हमारे एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले एडवांटेजेस कहता है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है दैट इज द मोर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। सेंडर और रिसीवर के बीच में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होता है, तो जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है वो क्या कर देता है, इसको कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देता है। उसके साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन क्या है, फास्टर एज कंपेयर टू द रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशंस में जहां लिखने में टाइम लगेगा उसके बाद उसे देना पड़ेगा, तो वहीं ओरल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये फास्टर किया जा सकता है। ओरल कम्युनिकेशन लेस एक्सपेंसिव, देयर इज नो नीड ऑफ एनी गैजेट, किसी तरह की अप्लायंसेस की, गैजेट की, एक्सेसरी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए और वहां ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा। सेकंड, नेक्स्ट वो कहता है ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन गेटिंग क्विक रिस्पॉन्स। जब दोनों के बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट है तो डायरेक्टली कांटेक्ट होने के बिहाफ पर क्विक रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकता है। फेस टू फेस जो एक्सप्रेशंस हैं, गेस्चर्स, पॉइंट्स हैं, उससे कम्युनिकेशन को क्या किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है पूरे के पूरे सिस्टम को। और उसके साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन क्या है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस एज पर द सिचुएशंस द कम्युनिकेशन कैन बी मोल्ड, उसको जो है हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। अब हम कुछ लिमिटेशन डिस्कस करते हैं इसके, कि अगर इसके अंदर कुछ खूबियां हैं तो थोड़ी बहुत खामियां भी होंगी, तो वो खामियां क्या हैं या कमियां क्या हैं, उस चीज को हम देखते हैं। लिमिटेशंस क्या है हमारे ओरल कम्युनिकेशंस की? तो ओरल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहली हमारी जो लिमिटेशंस आती है वो इसके अंदर आती है कि ओरल कम्युनिकेशन कि इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ डिस्टिंक्ट बिटवीन द प्लेसेस, कि ओरल कम्युनिकेशन अगर ज्यादा दूरी है तो वहां पर इसके अंदर जो है वो नहीं किया जा सकता, मींस नॉट पॉसिबल ओरल कम्युनिकेशन not possible when sender and receiver are at distinct position। distinct position का मतलब far away, ज्यादा दूर जहां पर सिचुएशन होगी तो वहां पर ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, वहां हमें किसी ना किसी गैजेट की यूज करनी पड़ेगी। जो सेंडर किसी बातचीत को करना चाहता है तो वो बातचीत जो है वो दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगी। फॉर एग्जांपल हम कहें कि किसी कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेट किया जा रहा है, एक लेक्चर दिया जा रहा है और उस लेक्चर के अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बैठी है, तो यहाँ आप क्या देखोगे, अगर जो सेंडर है और जो रिसीवर है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, दूरी जितनी ज्यादा होगी तो वहां पर दूसरे पर्सन को रिसीवर तक इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं, तो ओरल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके साथ हम ये देखें कि जो ओरल कम्युनिकेशन है लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि देयर इज अ यूज ऑफ मैकेनिकल डिवाइस। अब इसके साथ साथ विद द हेल्प ऑफ ओरल कम्युनिकेशन सम कॉन्फ्लिक्ट्स आर कम इन द सिचुएशंस। समटाइम जो ओरल कम्युनिकेशन है develop some conflicts in situation, किसी भी परिस्थिति में जो है वो इसके बिहाफ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ आ सकती हैं, जब कोई भी जो हमारा सेंडर है उसके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो प्रॉपर लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहा है, जो मैसेज उसको देना है वो मैसेज उसको खुद को ही क्लियर नहीं है, तो वहां पर हम क्या देखेंगे, उस सिचुएशन के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो इसके अंदर डेवलप
हो सकते हैं। उसके साथ साथ हम देखें कि ऑरल कम्युनिकेशन, बाय ऑरल कम्युनिकेशन lengthy message cannot be given to receiver। ज्यादा लंबा मैसेज जो है वो इस प्रोसेस के बिहाफ पर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। उन दोनों के बीच में जो है वो लेंथी या लॉन्ग जो इंफॉर्मेशन है उसको वो गेन नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने देखा कि ऑरल कम्युनिकेशन के वेरियस फॉर्म क्या हैं, फॉर्म्स के साथ साथ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस, क्या उसकी खामियां हैं, क्या उसकी खूबियां हैं, इस चीज को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।